आज बेटा आज हो यार बेटा, आप उधर नज़र आता है सही उधर से? मैंने कहा रिफ्लेक्शन होता है ना बाहर वाली लाइट का, नहीं? ओके जी एवरीवन, टुडे इज़ द लास्ट टॉपिक, होपफुली लास्ट अगर हम कर पाए तो. We have to study three things: Bohr's model, electron energy level and spectrum. ठीक है? So first of all we have to see what is Bohr's model. Bohr's electron model, and this he proposed for hydrogen atom. Acha, we are already familiar with normal atomic model. The normal atomic model is Rutherford's model. Rutherford's atomic model. Acha, what is Rutherford's atomic model? कि भाई there is a positive charge core in the center of atom which is called nucleus, and then it is surrounded by negatively charged particles which are moving in large empty spaces around this positive charge. And the main core part was there was large empty spaces between nucleus and electrons. Acha, Rutherford was not successful in telling exact things about electron. He just told exact thing about nucleus. He discovered proton, he discovered positive charge is there. तो प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी. अच्छा, फिर उसने न्यूक्लियस का भी उसने बताया था, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर भी उसी ने बताया था, बट ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन the condition position of electrons, how electrons are moving and where are electrons and everything related to electrons, right? So then Bohr take up that challenge and he proposed the electron model, and he took the most simple of the elements, that is hydrogen, because hydrogen is H11. So it is having one proton and it is having one electron in the shell. So that's why he took example of hydrogen to explain how these electrons behave when they are in their orbits. ठीक है? तो we have to look for 4-5 points for Bohr's electron model. So what are the points of Bohr's electron model? Of course, these points will be related to electrons. So the first point is electrons orbit nucleus along fixed paths known as orbits or energy levels. Orbits, shells or energy levels. This is the first point. Okay, second point. Electron in a particular shell or orbit is having fixed value of energy. Acha, what we are looking at is Bohr's electron atomic model. कि what he said about electrons, कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका स्टेटस क्या होता है और उनके बारे में एवरी यूजफुल इंफॉर्मेशन उसने हमें बताई. तो फर्स्ट थिंग इज वेरी सिंपल, एवरीवन नोज कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट न्यूक्लियस अलोंग fixed paths, and those fixed paths are called shells, orbits or energy levels. So actually we have to use the word energy levels instead of using orbit or shell. लेकिन why we are using orbit or shell? Because we are used to it. हमें पता है कि वो orbit होता है या shell होता है, K shell, L shell, M shell, right? Okay, next, electron in a particular shell or orbit or energy level is having fixed value of energy. उसकी fixed energy होती है. Number 3, electron cannot emit energy
while in its own energy level or orbit or shell. Okay, it means that electron, when it is orbiting in its own shell, let's say the first shell is K shell. So let's say if it is in K shell and it is moving in K shell, so it is not going to release any energy. It will retain its energy. वो energy उसके पास ही रहेगी, वो कभी lose नहीं करेगा. Next point, point number 4. Point number 4 is electron can go to higher energy levels. Higher energy levels mean shells, higher shells. Like higher shell mean कि K से वो L की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, higher orbit में. So electrons can go to higher energy levels upon absorbing specific energy from external source. External source mean electromagnetic radiation or photons. What does this mean? Number 4, electrons can go to higher energy level or shells upon absorbing specific energy from external source. Let's say if we say electron is in K shell, so it will remain in K. But what happened is that if we expose this electron to some external electromagnetic radiation, let's say photon. So let's say बाहर से एक photon आ रहा है, and when photon is coming and this electron absorbs photon energy. So after absorbing the energy, it will jump to the higher shell, right? So at his own, electron खुद से higher shell में नहीं जा सकता, वो बस अपने K shell में रहता है, हमेशा वो ऑर्बिट करता रहता है. आपने K से L shell में भेजना है, हायर शेल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, और आप वो एनर्जी जब उसको देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में, तो इट विल जंप टू द हायर शेल. नंबर 5, अच्छा, जब वो हायर शेल में जाएगा तो उसको हम एक्साइटेड स्टेट कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटम. सो जब इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर शेल में चला गया, तो इस एटम की स्टेट को, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन था जो हायर शेल में चला गया, उसको हम एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम कहेंगे और एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे. देन नंबर 5 is electrons can't stay in higher energy levels या एक्साइटेड स्टेट. इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा देर के लिए एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता या हायर एनर्जी लेवल पे नहीं रह सकता. इट हैज़ टू कम बैक. सो इट डी एक्साइट्स टू इट्स ओन एनर्जी लेवल and releases energy in form of electromagnetic radiation or photon. Okay, that's it. These are the 5 points of Bohr's electron model. This is very simple. इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल, इनडायरेक्ट एग्जाम्पल बताता हूँ. इसका बैकग्राउंड क्या था, जैसे मैंने पहले बताया, जो लोग अभी आए हैं उनको बता रहा हूँ. इस टॉपिक का बैकग्राउंड है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, कि रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल बताया, ठीक है, 1909 में, कि भाई एटम के सेंटर में उसने जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया, तो ही कम अप विद 3 थिंग्स. वन थिंग, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी. नंबर 2, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज कोर इन द एटम. नंबर 3 क्या था, negative charge. The core is very dense. The core is very dense. Core is positive charge. Core is very dense. Dense mean very small. And then there are large empty spaces. अच्छा, Rutherford was not able to tell anything about electron, कि भाई इलेक्ट्रॉन का क्या होगा. तो ये बोहर बाद में, नील बोहर was the physicist, ये उसके बाद आया, ठीक है, उसी एरा का साइंटिस्ट था, रदरफोर्ड के एरा का ही, 1910, 11, 12.
इसने बाद में एक्सपेरिमेंट किया हाइड्रोजन एटम के ऊपर और इसने कहा कि मैं अब, क्योंकि रदरफोर्ड ने तो न्यूक्लियस का सारा बता दिया है, ये भी बता दिया एम्प्टी स्पेस है, अब नाउ आई हैव टू टेल कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का न्यूक्लियस का वो तो उसने बता दिया है सब कुछ, राइट। जो न्यूट्रॉन था, ये वैसे ही आपको बता रहा हूँ, जो न्यूट्रॉन था ना इसके अंदर, वो 1934 में डिस्कवर हुआ था। न्यूट्रॉन का उस टाइम तक किसी को नहीं पता था, क्योंकि वो एक साइलेंट पार्टिकल है, उसके ऊपर चार्ज ही कोई नहीं है, राइट। तो 1934 में जेम्स चैडविक जो है उसने डिस्कवर किया था कि भाई इसके अंदर तो एक और भी है पार्टिकल, जिसको क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद 1934 के बाद फिर सीरीज़ ऑफ डिस्कवरीज शुरू हो गई थी कि ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो स्मॉलर पार्टिकल नहीं है, ये तो किसी और से मिलकर बनते हैं। वो 1937 में पहला एक्सपेरिमेंट हुआ कि ये तो क्वार्क से मिलकर बने हैं, तो फिर क्वार्क्स डिस्कवर होना शुरू हो गए, राइट। अच्छा, तो बोहर ने बताया कि यार मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको बताता हूँ कि एटम के अंदर, किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह होते हैं, कहाँ होते हैं, क्या कर रहे होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब इस रदरफोर्ड के एटम मॉडल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रॉन किधर होता है और वो क्या कर रहा होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज डूइंग एवरीथिंग फॉर अस। ये एलईडी हमें लाइट दे रहा है, किस वजह से दे रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। एक्सरे मशीन हमें एक्सरे देती है, किस वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। लाइक इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अच्छा, अब बोहर ने 5 पॉइंट्स बताए विच आर वेरी सिंपल। फर्स्ट पॉइंट इज वेरी सिंपल कि इलेक्ट्रॉन्स मूव अलोंग फिक्स्ड ऑर्बिट्स और शेल्स around the nucleus, and he said that those orbits or shells are known as energy level. So he used the word energy level, which is our next topic as well, कि हमने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी कि फर्स्ट शेल में कितनी है, सेकंड में कितनी है, थर्ड में कितनी है, फोर्थ में कितनी है। हर शेल में हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल और ऑर्बिट इज हैविंग फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। जब वो अपने लेट से के शेल में है, के शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी फिक्स्ड एनर्जीज हैं, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। नेक्स्ट थिंग, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट इमिट एनर्जी वाइल इन इट्स ओन एनर्जी लेवल। अगर वो के शेल में ही है तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी लूजिंग इट्स एनर्जी, क्योंकि वो तो अपने घर पे है, तो इलेक्ट्रॉन इज नॉट लूजिंग एनी एनर्जी एज फॉर एज इट इज स्टेइंग इन इट्स ओन शेल। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन खुद से जंप करके हायर शेल्स में नहीं जा सकता। जैसे आप लेट से, अब मैंने आपको एग्जाम्पल का बताया था, एग्जाम्पल का हम ये करते हैं कि आप ये इमेजिन करो कि ये एक कपबोर्ड है और इसके अंदर डिफरेंट जो हैं वो शेल्फ्स लगी हुई हैं, ठीक है। ये अब शेल्फ्स हैं। अब लेट से एक ऑब्जेक्ट, मैसिव ऑब्जेक्ट है, आपने यहाँ रखा हुआ है, कोई बॉक्स इधर लोएस्ट शेल में आपने रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इमेजिन करो ये इलेक्ट्रॉन है उधर, तो ये क्या खुद से ऊपर जा सकता है, खुद से ऊपर जा सकता है। हम कहें कि नहीं, इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यहाँ ले जाओ, तो उसको कहो खुद से ही चला जाए, खुद से तो नहीं जा सकता। तो यही सेम इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन खुद से हायर एनर्जी लेवल में नहीं जा सकता। नंबर 4, इलेक्ट्रॉन कैन गो टू हायर एनर्जी शेल वंस एक्सटर्नल सोर्स स्टार्ट गिविंग एनर्जी टू इट। और वो क्या होएगा, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फोटॉन होएगा। जब वो आएगा, इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। अब इलेक्ट्रॉन कहेगा भाई मेरे पास तो ज़्यादा एनर्जी आ गई और जिस लेवल में मैं हूँ उस लेवल में रहने के लिए तो एनर्जी कम चाहिए, तो क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको उठा के हायर एनर्जी लेवल में ले जाएगी। तो वो के शेल से ऊपर LMN ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, राइट। इधर जैसे अब भी इसको बॉक्स को हमने ऊपर भेजना है, लेट्स से इस बॉक्स को मैं 4 पे भेजना चाहता हूँ, तो क्या कैसे भेजूंगा 4 पे, मतलब लेट से मैं उसको उठाऊंगा और उठा के अपनी एनर्जी यूज़ करूंगा, वर्क करूंगा ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करूंगा ना, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे पुल कर रही है, उठा के इसको मैं यहाँ पे ऊपर रख दूंगा, इधर यहाँ। तो अब मैंने वर्क किया, दैट्स व्हाई इट हैज़ मूव्ड टू नेक्स्ट शेल्फ। जितना ज़्यादा मैं वर्क करूंगा वो उतना ज़्यादा हायर शेल में वो चला जाएगा। ऐसे ही है ना, अगर मैं और ज़्यादा वर्क करता तो मैं 5th में लेके जा सकता था, ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करता। सेम इज़ फॉर इलेक्ट्रॉन कि व्हेन यू एक्सपोज इट टू स्पेसिफिक एनर्जी, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक, रैंडम नहीं कि बस रैंडम ही एनर्जी दे दो, ऐसे नहीं हो सकता। आपको स्पेसिफिक एनर्जी देनी है, वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। नेक्स्ट थिंग इन अ वे इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट स्टे इन हायर एनर्जी लेवल्स और एक्साइटेड स्टेट, so it de-excites to its own energy level
and releases energy in form of electromagnetic radiation. तो once electron absorbs this photon's energy, it's shifted to higher energy level. जब higher energy level में जाएगा तो उसको पता लगेगा भाई ये तो मेरा जो असल मेरा होम है ये तो नहीं है, मैं तो नीचे से आ रहा हूँ, इसलिए वो वापस नीचे चला जाएगा. और वन मोर रीज़न, न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस उसको नीचे अट्रैक्ट कर रहा होगा. ठीक है. और इसकी एग्जांपल ये हो सकती है सिंपल कि देखो ये अगर इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ पर है अभी, तो ये इधर ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा. अब अगर मुझे इसको ऊपर भेजना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है. आप देखो मैं इसको कौन सी एनर्जी दे रहा हूँ, किस फॉर्म में दे रहा हूँ एनर्जी, काइनेटिक. और यूज़ कौन सी कर रहा हूँ, काइनेटिक कहाँ से बन रही है, केमिकल से. ठीक है. तो इनपुट एनर्जी क्या है, केमिकल, माई बॉडी इज केमिकल या काइनेटिक. अब आपने देखना है इसके बाद एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी. एंड रिमेंबर दिस इज इलेक्ट्रॉन. और सपोज मैंने इसको ग्राउंड से उठाया है, अब ग्राउंड से मैं ग्राउंड से फेंक रहा हूँ, फेंक यहाँ से रहा हूँ, आप सपोज करो ग्राउंड से फेंक रहा हूँ और ग्राउंड पे ही वापस जाएगा. ठीक है. तो आप देखो ये ऊपर गया और वापस नीचे पहुँच गया. जब ये ऊपर गया हाईएस्ट पॉइंट पे तो एक्साइटेड स्टेट में है, लेकिन वहाँ पे ये ज़्यादा देर के लिए नहीं रुक सका, नीचे आ गया. अब नीचे आके आपको एनर्जी इसने किस फॉर्म में दी है, साउंड एंड हीट. इनपुट एनर्जी कौन सी थी, केमिकल. आपको आउटपुट कौन सी दे रहा है, साउंड. डिफरेंट दे रहा है ना. सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाएगा फोटॉन की एनर्जी लेगा, लेकिन जब नीचे आएगा तो वो आपको डिफरेंट एनर्जीज देगा. और वो एनर्जीज कौन सी होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से ही होंगी, 7 में से. रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज, इन्हीं में से वो आपको एनर्जीज देगा. राइट. तो डज दिस मेक सेंस. हाँ, वो डिपेंड करेगा ना, वापस आते हुए एनर्जी आपको देगा. ऊपर जाने के लिए तो उसने एनर्जी यूज की, जो आपने उसको एनर्जी दी उसने एनर्जी यूज की ऊपर जाने के लिए. जब वो नीचे वापस आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से ही डिफरेंट एनर्जीज वो इमिट करेगा. वो डिपेंड करेगा कि वो कितना लेवल कवर करके आ रहा है, कितनी हाइट से आ रहा है. जितनी ज़्यादा हाइट से आ रहा होगा, हायर लेवल से नीचे आ रहा होगा, वो उतनी हाई फ्रिक्वेंसी की एनर्जी रिलीज करेगा. और अगर वो थोड़े से ही ऊपर ऑर्बिट में गया है, मतलब फर्स्ट या सेकंड या थर्ड में गया है, फिर जब वापस आएगा तो वो लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, जो रेडियो या माइक्रो या इंफ्रारेड रे या लाइट रेज में होंगी. ठीक है. तो इज दिस थिंग क्लियर बेटा, कोई डाउट इसमें नहीं. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल. नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मतलब एग्जाम के लिहाज से भी ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के हैं, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल. अच्छा बेटा, हाइड्रोजन के लिए ना, हाइड्रोजन एटम का पहले देखते हैं. हाइड्रोजन एटम के लिए मैं एनर्जी लेवल्स बनाता हूँ. एंड दीज एनर्जी लेवल्स आर लाइक दिस. इसी तरह मैंने बनाने हैं. ओके, तो लेट्स ड्रॉ द एनर्जी लेवल्स. ये बेटा सबसे पहला एनर्जी लेवल होता है, इसको हम कहते हैं लोएस्ट एनर्जी लेवल, EL. एनर्जी लेवल के लिए मैं EL लिखूंगा, या ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट. और लेट्स से इलेक्ट्रॉन यहां पर है. वालेकुम सलाम. इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्राउंड एनर्जी लेवल में होता है. जब वो हाइड्रोजन एटम में है तो कौन सी शेल में होगा, K में. K शेल इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस. क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस का मतलब क्या होएगा, ग्राउंड एनर्जी लेवल. मिसाल के तौर पे अगर ये मार्कर मैं यहाँ रखा हुआ है या ग्राउंड पे रखूँ, तो सबसे लोएस्ट लेवल पे ये किधर होगा, यहाँ होगा या ग्राउंड के ऊपर होगा, ग्राउंड के ऊपर. क्यों, क्योंकि इस फ्लोर पे ये अर्थ के ज़्यादा क्लोज है. तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल में होता है. और एनर्जी लेवल्स को हम नंबर्स से लिखते हैं, जिस तरह N1 का मतलब है लोएस्ट एनर्जी लेवल और फर्स्ट एनर्जी लेवल, और इसको ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट स्टेट बनाते हैं. नेक्स्ट स्टेट एनर्जी लेवल ये बनता है. अच्छा, इनमें एनर्जी की वैल्यूज़ भी होती हैं. इसमें एनर्जी की एक वैल्यू होएगी, कितनी होएगी वो मैं अभी आपको फॉर्मूला बताता हूँ, उसके थ्रू हम लिखेंगे. ये सेकंड एनर्जी लेवल है. अच्छा, अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्यों है, क्योंकि हम तो अभी तक ऑर्बिट्स में होते हैं ना, कि अच्छा इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ऑर्बिट में है. अब हम स्ट्रेट लाइन बनाना शुरू कर दिया हमने, तो आप यही समझो कि मैं ऑर्बिट ही बना रहा हूँ, लेकिन स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बना रहा हूँ, सर्कल में नहीं बना रहा. ठीक है. तो ये ऑर्बिट्स ही हैं बेसिकली, K शेल, L शेल, इस तरह ऑर्बिट्स हैं. ओके, तो दिस इज N2 सेकेंड एनर्जी लेवल.
ऊपर मैं जाऊंगा तो N3 बनाऊंगा। और एक चीज आपने नोटिस करनी है कि जूं मैं ऊपर जा रहा हूं लेवल्स के बीच में गैप कम करता जा रहा हूं, इवन गैप नहीं है। तो यहां थर्ड एनर्जी आएगी। इसी तरह मैं ऊपर गया तो ये N4 हो गया, E4 N4, और ऊपर गया तो ये N5 हो गया, E5 N5। और इसी तरह नंबर ऑफ लेवल्स और बहुत सारे लेवल्स के बाद मेरे पास लास्ट एनर्जी लेवल ये आएगा, जिसमें हम कहेंगे कि जो N है दिस इज इन्फिनिट। इसको वैलेंस शेल भी कहते हैं। वैलेंस के जो बिल्कुल आउटसाइड एटम होता है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो मतलब वो आउट ऑफ एटम है, ठीक है। तो इसमें एनर्जी एट इन्फिनिटी हम लिखेंगे कितनी होएगी। सो फर्स्ट दीज पैरेलल लाइंस आर व्हाट, दीज आर व्हाट, एनर्जी लेवल्स। दीज आर एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, या फिर ऑर्बिट्स या शेल, लेकिन यहां हम एनर्जी लेवल कहेंगे। दीज आर एनर्जी लेवल्स। व्हाट आर दीज नंबर्स, N1 2 3 4 5, ये क्या है नंबर्स, क्या है ये एनर्जी, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल के। कौन सा एनर्जी लेवल की हम बात कर रहे हैं? दिस इज फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड इन्फिनिट। इन्फिनिट एंड फर्स्ट आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट है, इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्राउंड स्टेट में होएगा। और इन्फिनिट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्फिनिट का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच गया तो इट इज आउटसाइड एटम, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये ईज क्या लिखी हुई है यहां पे? दिस इज वैल्यूज ऑफ एनर्जी, कि इलेक्ट्रॉन अगर इस लेवल में होएगा तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए होएगी अगर हमें उसको एटम से बाहर निकालना है, या फिर उसके पास कितनी एनर्जी होएगी, हम ये भी कह सकते हैं। ओके अब इसके निकालते हैं जरा एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा En इज माइनस आयनाइजेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? केमिस्ट्री में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कि आयनाइजेशन एनर्जी होती है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम इट्स एटम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो इसकी है हाइड्रोजन की है वो है माइनस 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका फॉर्मूला है। चूंकि हमने किसी और का पढ़ना ही नहीं है, वी ओनली हैव टू स्टडी फॉर हाइड्रोजन, किसी और का नहीं पढ़ना, इसलिए हमें सिर्फ हाइड्रोजन की बात करनी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की जो एनर्जी है वो कितनी है, ये गिवन होगी 13.4। माइनस क्यों लिखा हुआ है? माइनस इसलिए लिखा हुआ है कि भाई अगर तो इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो ये माइनस 13.4 का मतलब ये होगा कि आपने इलेक्ट्रॉन को 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी है, तब वो यहां से निकल के वैलेंस पे पहुंच जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो नेगेटिव साइन शोज दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू टेक इट आउट ऑफ द एटम। जिस तरह वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज भी सारी नेगेटिव थी ना, ग्रेविटेशन में जीपी सारी नेगेटिव थी, तो इसी तरह यहाँ पे भी ये सब जो एनर्जीज हैं, एनर्जी लेवल में जो एनर्जीज हैं, ये सब नेगेटिव होंगी। और इस नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन नीड दिस मच ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू गो टू द वैलेंस शेल और गो आउट ऑफ द एटम, ठीक है। अब ये तो हमें पता लग गई फर्स्ट की। N1 की तो हमें पता है। कैसे पता है? हमने यहां पे वैल्यूज ऑफ N पुट करनी है। जिस लेवल में आपने एनर्जी निकालनी है उस लेवल का नंबर N का आप इस इक्वेशन में पुट करोगे। जिस तरह आपने N1 निकालना है कि फर्स्ट लेवल में कितनी है, तो N की जगह 1 पुट कर दोगे, 1, और इधर भी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। दैट्स वाई फर्स्ट लेवल में एनर्जी माइनस 13.4 आएगी। अगर आपने N2 या सेकेंड लेवल में इसको देखना है तो सेकेंड लेवल में क्या होएगा? फिर सेकेंड में क्या होएगा? आप यहां पे क्या पुट करोगे? हाँ, 2 पुट करोगे। 2 का स्क्वायर कितना होएगा? 4। 13.4 डिवाइड बाय 4 करो, कितना आता है? 3 कितना आता है? देखो 3.33 शायद, या ऐसे आए कुछ, 3.26। ओके, तो इसमें आएगा माइनस 3.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सेकेंड एनर्जी स्टेट ये हो गई। इसका क्या मतलब है कि अगर बिलफर्ज इलेक्ट्रॉन यहां पे होता तो
उसको बाहर ले जाने के लिए आपको 3.26 की एनर्जी उसको देनी पड़ती, राइट? आप देखो इन दोनों एनर्जी स्टेट में एनर्जी का डिफरेंस कितना है, दोनों को माइनस कर दो, आपको पता लग जाएगा एनर्जी का डिफरेंस कितना है। तो दोनों को माइनस करें तो क्या आंसर आता है, 13.4 माइनस 3.26 हो जाता है 11.14 ये एनर्जी का डिफरेंस है। ये भी आपसे पूछता है कि फर्स्ट और सेकंड लेवल में एनर्जी का कितना डिफरेंस, ओ सॉरी 10 पॉइंट, यस ओके। अब N3 का मुझे बताओ, N3 में एनर्जी कितनी होएगी फहद, N3 में कितनी होएगी? तो इसको इसकी जगह 3 पुट कर दो, 3 का स्क्वायर 9, तो 13.4 को 9 से डिवाइड करो तो कितना आंसर आएगा 1.488, तो 4 9 कर दो। इसी तरह अगर आपने फोर्थ में देखना है तो इसकी जगह 4 लगाओ, 13.4 ओवर 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आएगा 0.84 कर दो चलो। और अगर N5 करना है तो इसकी जगह 5 पुट कर दो, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 13.4 ओवर 25 कितना आएगा 536, तो 54 कर दो। तो बेटा ये देखो आपने सारी एनर्जीज निकालनी। अच्छा इन्फिनिट में क्या होएगा, इन्फिनिट में आपको n की जगह इन्फिनिट पुट करना है ना, तो एनीथिंग ओवर इन्फिनिट 0, तो यहां पे एनर्जी क्या हो जाएगी 0। 0 इज वेरी स्पेशल, वाई 0 का मतलब है भाई वो ऑलरेडी बाहर है एटम से, आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना उस पर, इट रिक्वायर्स 0 एनर्जी टू गो आउट, क्योंकि वो ऑलरेडी बैलेंस में पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो समझ आ गई एनर्जी लेवल्स की क्या है। एनर्जी लेवल्स क्या है, ये फिक्स्ड होंगे, बने हुए होंगे, आपको ये एनर्जीज लिखी हुई मिलेंगी, कोई उसमें टेंशन की बात नहीं होगी, ये सब भी यहाँ लिखा हुआ होगा। अब हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट, सो वी आर गोइंग टू यूज इट in 0.4 and 0.5 only. Now we have to apply 0.4 and 0.5 on this diagram. So let's first apply 0.4. 0.4 क्या है, what is 0.4? कि इलेक्ट्रॉन को बाहर से जब एनर्जी मिलेगी वो जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से दिस इलेक्ट्रॉन इज हियर एंड यहां से एक फोटॉन आ रहा है, ये फोटॉन की सिंबल है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर एक फोटॉन है, उसकी सिंबल है। अब ये फोटॉन आया, इलेक्ट्रॉन को हिट किया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्ब करके क्या हुआ, जंप करके हायर लेवल में चला गया। ठीक है, हायर लेवल में किसी में भी जा सकता है, 2 3 4 5, इट डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ फोटॉन, के फोटॉन की एनर्जी कितनी है। जाहिर है फोटॉन की एनर्जी ज्यादा होगी तो ज्यादा लेवल पे जाएगा, कम होगी तो कम लेवल पे जाएगा। बट एक और बात देखो, एवरी 2 एनर्जी लेवल्स के बीच में एनर्जी का फिक्स डिफरेंस है। जिस तरह यहां कितना डिफरेंस है, अगर इसकी एग्जैक्ट 10.14 हुई तो एब्जॉर्ब करके इस लेवल में आ जाएगा, लेकिन अगर इसकी एनर्जी 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई फिर क्या होएगा, अगर 9 हुई फिर क्या होएगा। देखो फर्स्ट लेवल में जाने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, 10.14, और इसकी इनकमिंग की मैं कह रहा हूं 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप बताओ क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं होगा, ये एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा उसको। फोटॉन अगर लेट से एब्जॉर्ब किया भी एब्जॉर्ब, तो वो यहीं से जाके वापस आ जाएगा, वो उस तक पहुंच ही नहीं सकेगा, क्योंकि इस तक पहुंचने के लिए इसको 10.14 चाहिए हर सूरत में। इसी तरह अगर आप इसका और इसका एनर्जी डिफरेंस देखो, वो कितना होएगा, इन दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, तकरीबन 1.5, ये तकरीबन आएगा 11.91 आएगा, 11.91। तो अगर इसकी 11.91 हुई तो ये यहां से जंप करके इसमें आ जाएगा, ना हुई अगर 11 हुई फिर भी नहीं जाएगा ये ऊपर। एग्जैक्ट एनर्जीज चाहिए, इनकमिंग फोटॉन की एग्जैक्ट एनर्जीज होनी चाहिए। इसी तरह फर्स्ट और इसमें डिफरेंस देखो कितना है, फर्स्ट और इसमें देखो डिफरेंस कितना है, फर्स्ट और इन्फिनिट में देखो डिफरेंस कितना है। तो इसका मतलब ये है, इफ वी जस्ट क्लोज दिस अप, तो हम ये कहेंगे कि यार जो इंसिडेंट रेडिएशन है, it must be having energy which is equal to difference between ground level and any of the higher level. अगर वो किसी के साथ मैच कर गई एनर्जी इस फोटॉन की, वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, जंप करके उस लेवल में चला जाएगा। तो लेट्स से अगर मैं ये कहता हूं कि राइट नाउ एट द मोमेंट इट हैज जंप्ड टू लेवल 3, इट हैज जंप्ड टू लेवल 3। अब आपसे मैं डिफरेंट चीजें पूछूंगा इसमें कि
टू लेवल 3, लेवल 3 वो चला गया। अब सबसे पहली बात ये बताओ कि डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन 1 एंड 3 कितना है? वेरी सिंपल आंसर, इसके बहुत सिंपल आंसर होंगे। क्यों फात? फर्स्ट और थर्ड के बीच में एनर्जी लेवल का डिफरेंस कितना है? हाँ, फर्स्ट और थर्ड के बीच में। ओ यार, इनको माइनस कर दोगे ना। डिफरेंस इन एनर्जी इज हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर, ये इसका फॉर्मूला होगा। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है? हायर माइनस लोअर, बस। हायर कितने और सब में माइनस भी होगा, ये भी याद रखने, सारे नेगेटिव हैं। तो ये होएगा -1.49 माइनस -13.4, ठीक है? तो ये हो जाएगा -1.49 प्लस 13.4, तो ये कितना आ जाएगा? 11.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इसका मतलब क्या होगा कि जो इंसिडेंट फोटॉन था उसकी एनर्जी कितनी थी? 11.91। ज़ाहिर है फोटॉन की एनर्जी इतनी थी ना, तभी तो उसको यहां से थर्ड पे लेके गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी, दिस इज क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 कैन बी कि आप ये बताओ कि फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ बताओ उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, फोटॉन जिसका पार्ट था, ये बताओ कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशन जिसमें वो फोटॉन था जिसको इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया और वो हायर लेवल में गया है। ओके, इसको आप कैसे निकालोगे? इसके लिए व्हाट यू विल बी डूइंग इज, आप E इज इक्वल टू HF या फिर E इज इक्वल टू hc/λ यूज करोगे। फोटॉन की एनर्जीज, अली फोटॉन की एनर्जी यूज करेंगे। तो E आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, E कितना है? 11.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट प्रॉब्लम ये है, इसको आपको जूल में करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कभी हम कैलकुलेशन में यूज नहीं करते, उसको जूल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको जूल में कन्वर्ट करो, 11.91 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दिस विल बी इंटू जूल्स। अब आप क्या करोगे? अब आप इसको इक्वल रख दो। H कितना है? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 या 7 इंटू 10⁻34, 63 आई गेस, हाँ 3, या मल्टीप्लाइड बाय F। तो बस F निकाल लो यहाँ से, तो आपको फ्रीक्वेंसी पता लग जाएगी कि फोटॉन जिस रेडिएशन में था उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है। मुश्किल है ये? ओके, इसी तरह अगर वेवलेंथ निकालना है तो आप यही वाली एनर्जी यहाँ पे लगा दो, H और C लिख दो और वेवलेंथ भी आप निकाल लोगे, राइट? तो वी हैव लर्न 2 फॉर्मूलाज। डिफरेंस इन एनर्जी कैसे निकालनी है, इनकमिंग फोटॉन की एनर्जी कितनी है, वो डिफरेंस इन एनर्जी लेवल के बराबर होएगा, और उसके बाद इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकालनी है। ओके, दिस वाज एक्साइटेशन कि जब ऊपर जा रहा है। पॉइंट नंबर 4 हमने देखता है। अभी हम देखते हैं पॉइंट नंबर 5 विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन 4, डी एक्साइटेशन, कि अब वो इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आएगा। तो नाउ दिस इज डी एक्साइटेशन प्रोसेस। ओके, डी एक्साइटेशन प्रोसेस क्या होता है बेटा? मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। ओके, लेट्स से, अच्छा लेट्स से ये स्टेयर्स हैं और हम क्या करते हैं कि नीचे खड़े हैं और हमारे पास एक टेनिस बॉल है, ठीक है? वो टेनिस बॉल इलेक्ट्रॉन समझो, हमने उसको एनर्जी दी और वो बॉल चली गई ऊपर किसी भी स्टेयर पे। ऐसे ही है ना, यहां से हमने हिट किया और ये चली गई यहां पे, राइट? अब जब ये यहां पे आई है तो ये कौन सा लेवल है? 1 2 3 4 5, मे भी ऊपर और भी होते, लेकिन ये 5 पे ही क्यों बॉल गई है, ऊपर क्यों नहीं गई? क्योंकि हमने उतनी एनर्जी दी है। तो इधर भी ऐसे ही है कि जितनी इंसिडेंट एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन उतने लेवल पे जाएगा, ज़्यादा एनर्जी आएगी हायर लेवल पे चला जाएगा, कम एनर्जी मिलेगी लोअर पे रहेगा, राइट? अब मुझे ये बताओ कि जब ये बॉल यहाँ पे आई है 5 पे, तो क्या ये 5 पे आके उधर ही रुक जाएगी? जो ही हिट करेगी वहीं पे रुक जाएगी? नहीं, क्या होगा? बाउंस करके किधर ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? ऊपर जाने का चांस है या नहीं है? नहीं है, नीचे आएगी ना।
अब जब इसने नीचे आना है, ऊपर जाने के प्रोसेस को इसको कहेंगे एक्साइटेशन। डाउनवर्ड प्रोसेस जो है उसको डी एक्साइटेशन कहेंगे। एक्साइटेशन में एनर्जी इन होती है कि आप उसको एनर्जी दे रहे होते हो, तब वो चीज़ ऊपर जा रही है। डी एक्साइटेशन में एनर्जी क्या होनी चाहिए? एनर्जी आउट होनी चाहिए। ऐसे ही है ना कि एनर्जी बाहर रिलीज होनी चाहिए उस बॉल की मदद से। अब नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बॉल है नंबर 5 से नीचे नंबर 1 तक कैसे आएगी? कैन यू प्रिडिक्ट इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होएगी, कैसे आएगी? कैन यू प्रिडिक्ट 100% विद 100% एक्यूरेसी? नो। कैसे आ सकती है कोई? लेट्स जस्ट हैव द एस्टिमेट। एक प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? एक ही हो सकती है कि डायरेक्ट यहां से आ जाए। दिस इज नंबर 1, जो बहुत अनलाइकली है ना, बहुत अनलाइकली है। ये सिर्फ कब हो सकता है कि अगर ये बॉल सिर्फ इस एज के ऊपर लगे, स्टेयर के एज पे लगे और एज से फौरन आप तक आ जाए, हो सकता है ये, राइट? सेकंड क्या होएगी पॉसिबिलिटी? सेकंड ये होएगी कि ये इस पे इस पे इस पे और इस पे बाउंस करके आए, हर एक स्टेप पे बाउंस करके आए, राइट? थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? यहां से इस पे आए, यहां से इस पे आ जाए, मतलब एवरी नेक्स्ट के बाद आए, ये भी हो सकता है। और भी बहुत सारी काउंटलेस पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। काउंटलेस तो नहीं, खैर ये तो थोड़े हैं स्टेप, तो इसलिए हम उसमें बता सकते हैं एग्जैक्टली कि भाई इतनी पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी यही करेगा। जब उसने वापस आना है तो उसके वापस आने की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होंगी, लेकिन हम उन पॉसिबिलिटीज को बता सकते हैं कि भाई कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें वो वापस आएगा। दिस थिंग इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो अब इसने आना है वापस, राइट? इस इलेक्ट्रॉन ने वापस आना है, ये एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि यहां पे ये है एक्साइटेड स्टेट। अब ये वापस आएगा तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये यहां से सीधा वापस आ जाए इधर। दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। अगर ये सीधा वापस आएगा तो जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी उतनी एनर्जी ये रिलीज कर देगा, क्योंकि वापस आते हुए इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है, राइट? तो ये जो एनर्जी रिलीज करेगा ये क्या होएगी? हाई फ्रीक्वेंसी होएगी या शॉर्टर वेवलेंथ होएगी। कैसे? क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है, जितनी एनर्जी उसको मिली थी उतनी उसने रिलीज कर दी है, एग्जैक्ट अमाउंट, राइट? कितनी एनर्जी इसने ली थी? 11.91, तो 11.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने रिलीज कर दी है। तो जो फोटोन यहां से निकला है वो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट होगा ना। जब वो रिलीज करेगा, हाँ हाँ, नहीं बेटा मिनिमम नहीं निकाली। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था फर्स्ट लेवल में, एनर्जी आई, इसको लेके थर्ड में चला गया। अब हमने देखा कि एनर्जी कितनी थी इंसिडेंट रेडिएशन की, तो उसका फॉर्मूला ये मैंने लिखा, हायर लेवल माइनस लोअर लेवल। हायर लेवल में -1.49 है, लोअर में -13.4 है। इनको माइनस किया या प्लस किया तो हमारे पास आ गया 11.91, जो इन दो लेवल्स के बीच में डिफरेंस है। तो हम मिनिमम ही लेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा हम यहाँ नहीं कंसिडर कर रहे क्योंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है? थर्ड, अच्छा आप कह रहे हो कि 3 में नहीं, 3 से थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। नहीं नहीं, ऊपर हम उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, मतलब ये हम हमारे लिए ये नहीं है, ठीक है? दिस इज नॉट ट्रू फॉर अस, राइट? ओके, क्योंकि देखो ना इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वैसे ही इतना छोटा है, फिर उसमें देखना कि वो थर्ड से थोड़ा ऊपर गया या नहीं, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अस है ना, हमारे सिलेबस में ये चीज़ है। वैसे आप ठीक कह रहे हो, थोड़ी सी ज़्यादा होएगी, राइट? ओके, अच्छा अब एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये यहां से किधर आए? इसमें आए। दिस इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी। ऐसे ही है ना? अब जब ये यहां से यहां आएगा तो ये भी कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन ये बहुत लॉन्गर वेवलेंथ मैंने बनाई है। क्यों? बिकॉज इफ यू लुक हियर तो सेकेंड, थर्ड और सेकेंड में एनर्जी का डिफरेंस कितना है? एनर्जी का डिफरेंस बहुत माइनर है ना, माइनर है ना, मतलब 3.26, 1.49, तो ये 1.5 और 1.76 और 1.77, तकरीबन 1.77 का डिफरेंस है, ठीक है? तो 1.77 तो बहुत स्मॉल एनर्जी है। तो जब बेटा बहुत स्मॉल एनर्जी होती है तो वेवलेंथ क्या होती है? लॉन्ग।
वेवलेंथ लॉन्ग होती है ना, इसलिए जो फोटॉन ये रिलीज करेगा जब n3 से n2 में आएगा, तो जो एनर्जी रिलीज करेगा या जो फोटॉन रिलीज करेगा वो जिस रेडिएशन का हिस्सा होगा वो लॉन्गर वेवलेंथ होएगी, मतलब दिस विल रिलीज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? थर्ड पॉसिबिलिटी होएगी कि वो इस 2 से 1 में वापस आएगा। जाहिर है देखो, अगर वो 2 में आया है तो 2 से उसने 1 में तो आना ही आना है ना, तो ये यहां से इसमें आएगा। अब इन दोनों में कितना एनर्जी का डिफरेंस है? n1 में और n2 में कितना डिफरेंस है एनर्जी का? कितना है? 10.14। अब इसका मतलब है कि ये थोड़ी सी रिलेटिवली शॉर्टर वेवलेंथ की एनर्जी इमिट करेगा। क्यों? क्योंकि अब एनर्जी ज्यादा है। 10.14 इज लार्जर एनर्जी देन दिस, जो यहां पे एनर्जी का डिफरेंस था। तो इन अदर वर्ड्स, जब इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा होगा तो उसकी मल्टीपल ट्रांजिशंस हमने बनानी होंगी, इनको स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर कि n3 से n1 में वो आ सके? नंबर 1 डायरेक्ट, नंबर 2 n2 में, और नंबर 3 n2 से n1 में। कोई और पॉसिबिलिटी है? क्यों भाई, कोई और पॉसिबिलिटी है इसमें? नहीं है ना। मतलब एक तो देखो ना, ये स्टेप है ना यार, स्टेयर समझ लो ना, ये थर्ड स्टेयर है, ये सेकंड स्टेयर है, ये फर्स्ट स्टेयर है। थर्ड स्टेयर से बॉल ने फर्स्ट में आना है, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? डायरेक्ट आ जाए नंबर 1, फिर 2 पे जाए नंबर 2, फिर 2 से 1 पे आए नंबर 3। सो देयर आर टोटल 3 पॉसिबिलिटीज। तो 3 लाइंस विल बी देयर, 3 स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी देयर। स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे बनती हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं, देखो जब ये n3 से 1 में आया, इसने ये रेडिएशन इमिट की है, हम इस रेडिएशन को कैप्चर कर लेंगे प्रिज्म के थ्रू, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्रू, तो एक लाइन बन जाएगी आगे स्क्रीन के ऊपर। लेट्स से मैंने यहाँ पे प्रिज्म रख दिया है, ये इसके सामने प्रिज्म रख दिया है, तो ये जो n3 से n1 में जो इलेक्ट्रॉन आया, जो उसने रेडिएशन इमिट की है, वो इस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे पड़ी है। इस साइड पे स्क्रीन, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ स्क्रीन है, तो यहाँ पे मेरे ऊपर एक लाइन बन गई, कलर लाइन एक बन गई, जो उस रेडिएशन को रिप्रेजेंट करेगी कि भाई एक रेडिएशन इमिट हुई है। नेक्स्ट, जो n3 से अगर वो n2 में आया तो फिर एक रेडिएशन इमिट होगी, इसको फिर ये कैप्चर करके यहाँ पे एक लाइन बना देगा, सेकंड लाइन हो गई। थर्ड ये कि n2 से n1 में वो आ रहा है, n2 से n1 में आ रहा है, फिर रेडिएशन इमिट कर रहा है, उस रेडिएशन को इसने कैप्चर किया और स्क्रीन के ऊपर 3 लाइंस बन गई। तो जब स्क्रीन, हमें देखो, हम क्या एटम के अंदर देख सकते हैं विजिबली? क्या माइक्रोस्कोप से भी किसी चीज़ से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है? नहीं देख सकते ना, हम सिर्फ लाइंस के थ्रू देखते हैं। इस एटम के सामने हम रखते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट या प्रिज्म या ग्रेटिंग एलिमेंट, फिर स्क्रीन रखते हैं, स्क्रीन के ऊपर कलर लाइंस बनती हैं, उससे पता लगता है जितनी लाइंस बनती हैं हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की उतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये हायर लेवल से लोअर लेवल में आ रहा है, राइट? तो 3 स्पेक्ट्रल लाइंस आर देयर। अब अगर ये n1 से n5 में गया तो फिर क्या होएगा? बल्कि एक सेकेंड, डी एक्साइटेशन प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, जो इसकी कैलकुलेशन है वो भी आपको बता देता हूँ, बट दिस इज द लास्ट थिंग। एनर्जी रिलीज्ड बाय डी एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वो आप एनर्जी कैसे निकालेंगे? उसी तरह, सेम जिस तरह वो निकाला है, यही फॉर्मूला होगा, हायर लेवल माइनस लोअर लेवल एनर्जी, दैट्स इट, सेम फॉर्मूला। और फिर इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको जूल में कन्वर्ट करना होगा। 1.6 × -19 जूल इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि वो एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देते हैं, तो आपको जूल में खुद कन्वर्ट करना होता है। सेकेंड थिंग जो आपसे पूछ सकते हैं, यही वाली बात कि जो फोटॉन निकल रहा है, अगर n3 से n2 में आया है, तो वो जो फोटॉन निकल रहा है वो जिस रेडिएशन का पार्ट है, बताओ उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वेवलेंथ कितनी है? तो यू विल बी यूजिंग सेम इक्वेशन अगेन, E इज इक्वल टू डेल्टा E इज HF और F इज इक्वल टू डेल्टा E, जो जूल्स में होनी चाहिए, ओवर H। ठीक है, तो यू विल फाइंड फ्रीक्वेंसी। इसी तरह अगर आपने वेवलेंथ निकालनी है तो डेल्टा E इज HC ओवर लैम्डा, तो लैम्डा इज HC ओवर डेल्टा E। तो ये आप उस इमिटेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स वर ऑल अबाउट। ठीक है भाई, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? पॉइंट नंबर 4 और 5 ही हैं ये सारे, जो बोर्स मॉडल है ना, उसका पॉइंट 4 और 5 की एक्सप्लेनेशन है। बस 4 में ऊपर जा रहा है,
5 में नीचे आ रहा है, ऊपर एक ही स्टेप में जाएगा, हमेशा एक ही स्टेप में जाएगा, और वापस आने के उसके मल्टीपल स्टेप्स होंगे। जितना ऊपर जा रहा होगा N5, अगर N5 में गया, यूजुअली क्वेश्चंस N5 तक आते हैं, तो फिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी N5 से N1 में, N5 से N2 में, N5 से N3 में, N5 से N4 में। अगर N5 से N4 में पहुंचा है तो 4 से भी नीचे जाने की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ होंगी, 4 to 1, 4 to 2, 4 to 3। अगर 3 में आया है तो 3 से भी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ होंगी, 3 से 1, 3 से 2, और अगर 2 में आया तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी होएगी, वो 2 से 1 में ही आएगा। ठीक है।